Hello everyone, welcome to your own channel. So in this video we will talk about SIM swapping. So क्या होता है SIM swapping? So before coming to the SIM swapping, first we will understand the very basic things of SIM card. As all of us know that how important the SIM card is. Without SIM card your mobile phones will not work, or you can say SIM card gives the life to the mobile phones, right? So first we will see what is the full form of SIM. Subscriber Identity Module. This is the full form of SIM, and if you have seen the SIM card, you might have noticed that on one side of the SIM card there is a logo of company, any company, like it can be Airtel, it can be BSNL or Jio, right? And on the other side of the SIM you might have seen one silicone chip. Okay, that is the golden colored silicone IC chip, and this is also called the brain of SIM, right? So in this brain some information is stored, in this chip some information is stored. Now what type of information stored in this SIM card? So first is IMSI number. What is the full form of IMSI? International Mobile Subscriber Identity. तो सिम कार्ड में क्या होता है? फर्स्ट IMSI नंबर होता है जिसके फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी, एंड दिस इज द 15 डिजिट नंबर. कितने डिजिट का नंबर है? 15 डिजिट, राइट? एंड व्हाट इज द यूज ऑफ IMSI? IMSI number is used to identify the mobile subscriber. मोबाइल सब्सक्राइबर को आइडेंटिफाई करने के लिए नंबर होता है. And this number contains, what it contains? It contains the country code, जिस कंट्री से सब्सक्राइबर बिलोंग करता है उसका कोड, एंड नेटवर्क ऑपरेटर्स कोड, उसका जो भी नेटवर्क ऑपरेटर्स है उसका कोड, राइट? सो ये दोनों चीजें आपके इस नंबर में होते हैं, IMSI नंबर में. इट कंटेन्स द कंट्री कोड एंड नेटवर्क ऑपरेटर्स कोड. फर्स्ट थिंग IMSI नंबर. सेकेंड थिंग, दूसरी चीज क्या होती है? ICCID नंबर. ये भी एक नंबर ही है. कितने डिजिट का है? ये 19 डिजिट नंबर है, राइट? एंड व्हाट इज द यूज ऑफ दिस? दिस इज यूज टू आइडेंटिफाई द सिम कार्ड. This is used to identify the mobile subscriber, and this is used to identify the SIM card, and it contains which country it belongs. क्या इंफॉर्मेशन होती है इसमें? Which country it belongs and which company it belongs. It stands for SIM, right? विच कंपनी, किस कंपनी का सिम है और किस कंट्री से बिलोंग करता है. ये दोनों इंफॉर्मेशन हमारी ICCID नंबर में होती है जो कि 19 डिजिट नंबर है, राइट? और क्या होता है आपके चिप में? SMS मैसेजेस भी स्टोर होते हैं और कॉन्टैक्ट स्टोर होते हैं. सो ऑल दीज 4 इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन सिम कार्ड, एंड सिम इज ऑल्सो कॉल्ड स्मार्ट चिप. स्मार्ट चिप ही है ये जिसमें ये सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, करेक्ट? नाउ वी विल टॉक अबाउट द सिम स्वैपिंग. सी इफ यू सर्च द सिम स्वैपिंग टॉपिक ऑन गूगल, सो इट विल शो यू द वेरियस लिंक्स ऑन सिम स्वैपिंग फ्रॉड और सिम स्वैपिंग स्कैम, राइट? बट एक्चुअली सिम स्वैपिंग itself is not a fraud, itself is not a scam. What is SIM swapping? SIM swapping is just to change the SIM against the same mobile number. यानी कि अगर एक मोबाइल नंबर पे आप सिम ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, आपको दूसरा सिम चाहिए उसी मोबाइल नंबर पे, उसको बंद करके दूसरा सिम चाहिए, चेंज करना है, ठीक है? सिम कार्ड आपको अगेंस्ट द सेम मोबाइल नंबर, दैट इज कॉल्ड सिम स्वैपिंग, राइट? एंड मिसयूज ऑफ दिस सिम स्वैपिंग इज कॉल्ड सिम स्वैपिंग फ्रॉड. That we will discuss later. अभी हम बात करते हैं SIM swapping. So SIM swapping, have you understood? It simply means change the SIM card against the same mobile number, and this we all do
for different reasons. So what are the various reasons in which we do the SIM swapping? First reason for SIM swapping is technology change. If the technology changes from 3G to 4G, 4G to 5G, then we need to swap the SIM. We need to change the SIM, right? Then second reason is कैरियर चेंज. आपका कैरियर चेंज, कैरियर यहाँ पे मतलब है कंपनी. सपोज आपका जियो कंपनी का सिम है तो आपको BSNL का लेना है या BSNL से एयरटेल का चेंज करना है. सो इस केस में भी आपका सिम स्वैप करना पड़ेगा. ओल्ड सिम से न्यू सिम. सपोज यू हैव ओल्ड सिम सिंस सो मेनी ईयर्स एंड इट वॉज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, कॉल ड्रॉप हो रहा है या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको वो ओल्ड सिम चेंज करना है, नया सिम लेना है. उस केस में भी सिम स्वैपिंग करेंगे. और सपोज आपका सिम लॉस्ट हो जाता है या मोबाइल लॉस्ट हो जाता है, तो उस केस में भी यू नीड टू चेंज द सिम. यू नीड टू परचेज द न्यू सिम अगेंस्ट द सेम मोबाइल नंबर. सो ऑल दीज आर वेरी जेन्युइन रीजन्स, राइट? सो दिस इज कॉल्ड सिम स्वैपिंग. These are the reasons for SIM swapping, right? Now, but few people misuse this SIM swapping and this is called fraud. कैसे misuse करेगा? देखो, so first misuse of SIM swapping में first है आपका to get VIP number. See, in earlier days, पहले टाइम में क्या होता था कि कोई स्पेशल सीरीज लेना होता था नंबर का. 9 लास्ट में मुझे 9999 चाहिए, या लास्ट में नंबर के मुझे 65432 चाहिए, व्हाटएवर, और या 11111 वाला नंबर चाहिए. तो इसके लिए वी नीड टू गिव द स्पेशल रिक्वेस्ट एंड वी नीड टू पे द एक्स्ट्रा चार्ज. तो मुश्किल से मिलता था. दीज आर कॉल्ड द VIP नंबर. ठीक है. तो अभी कुछ लोग क्या करते थे, इस VIP नंबर को लेने के लिए सिम स्वैप करते थे. मीन्स अगर आपके पास VIP नंबर है तो वो क्या करेंगे, आपका सिम को बंद करवा देंगे और अपने सिम को एक्टिवेट कर देंगे अगेंस्ट दिस नंबर. तो उनके पास नंबर स्टार्ट हो जाएगा. तो इसमें कोई भी फाइनेंशियल लॉस नहीं था. जस्ट टू गेट द VIP नंबर दे यूज टू डू दिस. सो दिस इज नॉट अ न्यू थिंग. सिम स्वैपिंग पहले भी होता आया. ठीक है. इट्स नॉट अ न्यू टर्म. तो फर्स्ट मिसयूज है VIP नंबर लेने के लिए. अभी नहीं होता ये सब, ये पहले टाइम में होता था, राइट? सोशल फ्रॉड. नाउ एवरीबडी नोज दैट आवर आइडेंटिटी इज लिंक्ड विद आवर फोन. ठीक है. फ़ोन में क्या क्या होता है आपका, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, आपका इंस्टाग्राम है, एंड ऑल दीज एप्स आर लिंक्ड विद द मोबाइल नंबर. एंड कैन यू इमेजिन इफ समबडी एल्स हैव कंट्रोल ऑन योर मोबाइल नंबर, हाउ दीज एप्स कैन बी मिसयूज्ड बाय दैट पर्सन. You can better imagine, right? So this is called the social fraud, in which there is a fear of loss of identity. आपका आइडेंटिटी लॉस होने का फियर रहे. ठीक है. तो इस केस में क्या होगा, ये सोशल फ्रॉड होगा कि आपका सिम बंद करके दूसरा सिम एक्टिवेट हो गया और वो सारे ऐप्स को हैंडल कर रहा है, मिसयूज कर रहा है, आपका पोजिंग एज अ victim, right? So fear of loss of identity. Now the third one, financial fraud. Because of this financial fraud, now this term is very common, SIM swapping. Everywhere you can hear that SIM swapping fraud, SIM swapping scam, because of this financial fraud. So this we will understand in detail, right? Now we will see financial fraud by SIM swapping. सिम स्वैपिंग से कैसे फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहे हैं. ठीक है. सो फर्स्ट थिंग क्या करता है फ्रॉडस्टर, फर्स्ट फ्रॉडस्टर टारगेट्स द पर्सन. सबसे पहले जो फ्रॉडस्टर है क्या करेंगे, एक पर्सन को टारगेट बनाएंगे. ठीक है. और उसके बाद क्या करेंगे, दे विल स्टार्ट कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज. और उस पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना शुरू कर देंगे. कहाँ कहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, देर आर वेरियस सोर्सेज. कौन कौन से हैं, फर्स्ट इज सोशल मीडिया. सोशल मीडिया लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम. सो फ्रॉम देयर they can see the profile, they can get the address, they can get the age, they can get the photograph. तो फर्स्ट सोर्स है सोशल मीडिया, जिससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा. सेकंड है गेमिंग साइट्स. आजकल गेमिंग साइट्स में क्या है, गेमिंग साइट्स में साइन अप लिंक्स होते हैं. ठीक है. तो साइन अप करते हैं जैसे, तो उसमें इंफॉर्मेशन कुछ फिल करना होता है, तो वो इंफॉर्मेशन फ्रॉडस्टर कैन टेक फ्रॉम देयर, कैन कलेक्ट फ्रॉम देयर. गेमिंग साइट में एक और चीज़ नया हो रहा है कि लाइक फ्रॉडस्टर क्या कर रहे हैं कि जो चिल्ड्रन है
उनसे दे आस्क देयर पेरेंट्स इंफॉर्मेशन इन रिटर्न ऑफ द एनी रिचार्ज और डिस्काउंट कूपन. They ask that you give the information about your parents, you fill the information so and so with your regarding your parents, and in return we will give you some discount or any recharge coupon to play the games, right? So gaming site, whatever children, if you are using the gaming sites, be very careful. No need to give personal information on gaming sites, right? It can be misused. And they are using this gaming sites for collecting the information, right? Next is phishing. Phishing क्या है? Phishing can be done through calls, through emails और through SMS. कॉल आएगा आपको कि हम इतना लोन देंगे आपको, या फिर कोई सेल के लिए, या फिर कुछ स्कीम के लिए, तो दे विल स्टार्ट कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन ऑन फोन इटसेल्फ. तो फिशिंग कैन बी डन थ्रू कॉल. ईमेल आएगा आपको, ईमेल के साथ अटैचमेंट होगा कि दे प्रिटेंड दैट दे आर फ्रॉम एनी रेप्यूटेड बैंक and they need some information to update our account, and whatever reason they will give, so they will ask for some information, right, to fill in the given form, in the given attachment, or SMS के through they can send the link. So phishing के through they can collect the information, or they are collecting the information in fact through phishing. Next is insecure apps and websites. So usually we download any app without seeing whether it is secure or insecure. We visit the websites, right? So some websites or apps are insecure. Why they are insecure? Because they sell the personal data for money, right? So these apps or many of the apps or websites, they sell the personal data. So we should be very careful about using the apps or websites. So we should always use the secure websites, right? So from there, this is also one of the source to collect the information. Unbelievable discounts and offers. So you might have seen few links that is the time bounded, means this link will be applicable only for one day, only for 15 hours or 15 minutes. in fact टाइमर चलता रहता है, जल्दी से लिंक पे क्लिक करो, डिस्काउंट मिलेगा 50%, आईफोन आपका 70% डिस्काउंट मिलेगा. So there are some discounts and offers. They all these bound us to fill the information, to sign up in the links. They compel us. So never be in haste, okay? Never be in haste. Never give your information. कुछ नहीं होगा, सब एकदम से कभी भी हरी में इंफॉर्मेशन नहीं देना है, ठीक है? थिंक ट्वाइस, टॉक विद योर पेरेंट्स. इफ दे आर रिलायबल देन ओनली वी शुड, अदरवाइज नेवर बी इन हेस्ट, राइट? सो ऑल दीज आर द वेरियस सोर्सेज ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन. नाउ नेक्स्ट, आफ्टर कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन, फर्स्ट फ्रॉडस्टर ने क्या किया? पर्सन टारगेट किया और उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज. सारे नहीं तो इनमें से कुछ यूज करके, ठीक है? नाउ डेज दे आर इनोवेटिंग द डिफरेंट वेज टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन. सो वी हैव टू बी वेरी वेरी अलर्ट, राइट? द नेक्स्ट इज आफ्टर कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन क्या करेगा? अभी देखो दो टाइप के सिम होते हैं, एक फिजिकल सिम और एक ई सिम, ठीक है? ई सिम आपका स्वैप कर सकते हो थ्रू रजिस्टर्ड मेल और इवन SMS भी. तो आपका वो रजिस्टर्ड नंबर से होना चाहिए SMS, और रजिस्टर्ड ईमेल से आपको भेजना है. सिम स्वैपिंग, ई सिम का सिम स्वैपिंग हो जाता है ईमेल और SMS के थ्रू. बट जो फिजिकल सिम है, फिजिकल सिम के लिए आपको आउटलेट पे जाना होता है, ठीक है? तो आफ्टर कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन, जो फ्रॉडस्टर है क्या करेगा? विजिट करेगा मोबाइल ऑपरेटर्स रिटेल आउटलेट. जो आपका ऑपरेटर है उसका आउटलेट को विजिट करना होगा उसे, विद फेक डॉक्यूमेंट्स, विद फेक ID प्रूफ एंड विद फेक अदर डॉक्यूमेंट. जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है उसने, उसके डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करेगा, फिर वो आउटलेट को विजिट करेगा, ठीक है? क्या करेगा वहाँ जाके? वो रिक्वेस्ट करेगा कि मेरा ये सिम है, जो उसका एक्चुअल में नहीं है. जो भी विक्टिम है जिसको उसने टारगेट बनाया है, उसका सिम को ब्लॉक करवा देगा कि मेरा ये सिम है, मुझे ब्लॉक करना है और नया सिम को एक्टिवेट करना है, ठीक है? तो अगर वो उसे लगेगा जेन्युइन है सब डॉक्यूमेंट्स, then they will allow that. तो post verification what mobile operator will do,
मोबाइल ऑपरेटर क्या करेगा, जो ओरिजिनल सिम है उसको ब्लॉक कर देगा जो विक्टिम के पास है, ठीक है, और जो फ्रॉडस्टर के पास सिम है उसको एक्टिवेट कर देगा, राइट। तो क्या होगा, जब ब्लॉक हो गया ओरिजिनल सिम या डीएक्टिवेट हो गया तो उसमें से नेटवर्क चला जाता है। तो सडनली अगर आपके पास सिम है, आप विक्टिम है, तो आपका सडनली नेटवर्क चला जाएगा। नेटवर्क डिफरेंट रीज़न से भी जा सकता है, बट अगर नेटवर्क विदाउट एनी रीज़न, कुछ जेन्युइन रीज़न नहीं है, ऐसे ही चला गया है, तो दिस इज़ अ अलार्मिंग बेल, राइट। अलार्मिंग बेल है कि नेटवर्क कैसे चला गया, लंबे टाइम के लिए चला गया, सो यू हैव टू बी वेरी अलर्ट। सो नेटवर्क गॉन ऑन ओरिजिनल सिम और न्यू सिम विल बी एक्टिवेट। अब क्या होगा, जो ओरिजिनल सिम है वो ब्लॉक हो गया, वो डीएक्टिवेट हो गया, नेटवर्क चला गया फ़ोन से, और जो फ्रॉडस्टर के पास सिम है वो एक्टिवेट हो गया, है ना। फिर एसएमएस, अभी एक चीज़ क्या है, अगर एक्टिवेट हो गया है, अगर उसका एसएमएस एक्टिवेट हो जाते हैं उस नंबर पे, फ्रॉडस्टर के पास जो सिम है, तो आपका फाइनेंशियल अकाउंट खाली हो जा सकता है, ठीक है, खाली हो सकता है। बट अभी वन साई ऑफ रिलीफ क्या है आपका, कि जो एसएमएस हैं न्यू सिम पे 24 आवर्स के बाद एक्टिवेट होते हैं, तो यू विल गेट टाइम, ठीक है। अगर नेटवर्क चला गया है तो 24 आवर्स तक आपका जो न्यू सिम है उस पर एसएमएस नहीं जा सकते हैं। तो टाइम है 24 आवर्स में टू टेक द स्टेप्स टू अवॉइड एनी फ्रॉड अगेंस्ट यू, टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगेंस्ट द फ्रॉड। तो एसएमएस विल नॉट एक्टिवेट ऑन न्यू सिम फॉर नेक्स्ट 24 आवर। दिस इज वन गुड थिंग एंड दिस इज वन साई ऑफ रिलीफ। इतने टाइम में हमें अलर्ट हो जाना है और वी नीड टू टेक सम एक्शन, राइट। अदरवाइज क्या होगा, अगर उसका एसएमएस स्टार्ट हो जाता है आफ्टर 24 आवर्स के बाद, तो ओटीपी आ जाएंगे उसके पास, फाइनेंशियल फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस ही कैन कंडक्ट। तो आपका अकाउंट का क्या होगा, यू बेटर अंडरस्टैंड दैट। सो दीज आर द स्टेप्स which fraudster are taking. They are taking all these steps. Fine, this is not any imaginary thing. They are doing all these things. So we should be very alert. So now we will discuss what are the steps or how can we avoid this financial fraud. So now we will see how to avoid SIM swapping frauds. How to avoid. So first thing is avoid sharing personal information online. So avoid sharing unnecessary personal information online. बेमतलब कि आपका इंफॉर्मेशन फिल नहीं कर देना है हर जगह, ठीक है। डू नॉट गेट ट्रैप्ड इन फिशिंग ईमेल्स, टेक्स्ट और कॉल्स। आपको कॉल आएंगे, एसएमएस आएंगे, वी शुड नॉट गेट ट्रैप्ड इन ऑल दिस। बी अलर्ट एंड वॉच आउट द सस्पिशियस एक्टिविटीज। अगर आपको लग रहा है कुछ फिशी है, कुछ गड़बड़ है, तो यू शुड बी अलर्ट। ऑलवेज शो डिस्ट्रस्ट ऑन लिंक्स, नेवर ट्रस्ट ऑन लिंक्स। वट एवर लिंक्स यू आर गेटिंग, नेवर शो ट्रस्ट, ओके। कुछ नहीं होगा अगर इंफॉर्मेशन नहीं दोगे, ठीक है। तो ऑलवेज शो डिस्ट्रस्ट ऑन लिंक्स। नेवर, जिसको ज़रूरत है वो फ़ोन करके ले लेगा आपसे, कुछ नहीं बिगड़ेगा, ठीक है। तो इतना हरी में लिंक भेजा है, इंफॉर्मेशन दे देनी चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, राइट। नेवर गिव एनी इंफॉर्मेशन इन हेस्ट और ड्यू टू एनी टेम्पटेशन। किसी लालच में, कोई डिस्काउंट कूपन है, रिचार्ज कूपन दे रहा है, उस लालच में कभी भी अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं देना है। टेक योर टाइम एंड कंफर्म द लिंक्स ऑथेंटिसिटी, ठीक है। तो आपका आराम से टाइम लीजिए, डिस्कस कीजिए पेरेंट्स से, टीचर से, गाइड से, और लिंक का ऑथेंटिसिटी चेक करने के बाद ही, कंफर्म करने के बाद ही नेक्स्ट स्टेप लेना है, राइट। सो दीज आर द फ्यू स्टेप्स which we can take to avoid the SIM swapping fraud. So I hope you have understood this SIM swapping. So if you like the video, please do write in the comment box and click the like button. Thanks for watching.